Now moving ahead, when we look at the particular changes which are brought in chapter 5 of BNS, offense against women are dealt from section 63 to 99 itself. तो जो चैप्टर 5 है उसको फर्दर इस तरह से हम डील कर सकते हैं. पहले उसमें आते हैं आपके क्रिमिनल ऑफेंसेस, जो सेक्शुअल ऑफेंसेस हैं आपके, विच आर सेक्शन 63 से 73 के अंदर. तो जो मोस्ट हीनियस ग्रूसम ऑफेंस हो सकता है अगेंस्ट अ वुमेन, दैट इज द ऑफेंस ऑफ रेप, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 63 इटसेल्फ. उससे स्टार्ट होता है आपका प्रोविजन. Then criminal force and assault against a woman is dealt from section 74 to 79. Offense relating to marriage under section 80 to 87 of BNS. Causing of miscarriage, जो पहले वो करता था आपके IPC में अलग से प्रोवाइडेड था आफ्टर द ऑफेंस ऑफ बॉडी, वो अब है सेक्शन 88 से 92 के अंदर. Then additionally this particular chapter also deals with child. It's not just limited to offense against women but also offense against women and child. So here in section 93 से 99 deals with offense which are committed against a child. तो हमारा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, the offenses which are against women are the important aspect which we are going to cover in the particular the changes in the particular topic. So in the light of the independent thought versus Union of India judgment, exception 2 to section 375 IPC dealing with marital rape, it was read down earlier, and sexual intercourse or sexual acts by man with his own wife, the wife not being 18 years. पहले वो 15 years हुआ करता था अंडर दी IPC. इंडिपेंडेंट थॉट के जजमेंट ने उसको चेंज करके आपका 18 years कर दिया था. द सेम इज नाउ केप्ट. जो चेंज जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू आया था इन द ऑफेंस ऑफ रेप, इन द ऑफेंस ऑफ मैरिटल रेप, वो ही यहाँ पे इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया एक्सेप्शन के अंदर अंडर सेक्शन 63 of BNS. And now that means the particular provision is read according to the judgment of the Supreme Court. हाँ, एक चीज़ दुखद है और I find it personally is not correct that marital rape is still an exception under the BNS. Further, sexual intercourse by employing deceitful means, एक नया जो आपका offense है जो section 69 के अंदर incorporate हुआ है. So it provides whoever by deceitful means, डिसीटफुल मीन्स का मतलब है टू डू डिसीट, या कोई फ्रॉड करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए, झूठ बोल के, राइट, विद द इंटेंट टू डिसीव, राइट. सो हुएवर बाय डिसीटफुल मीन्स, डिसीटफुल तरीका है उसका करने का, और बाय मेकिंग प्रॉमिस टू मैरी टू अ वुमेन विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम. आपने देखा होगा ये कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस चीज़ को ऑर्गेनाइज या कह लो आपका डील किया है कि भैया फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी अमाउंट्स टू रेप, समटाइम्स दे सेड इट अमाउंट्स टू चीटिंग, अलग अलग प्रोविजंस चल रहे थे, राइट. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वेरी कर रही थी. उन्होंने थोड़ा डिफ्रेंशिएशन करा था उस बारे में. एक दीपक का केस था 2012 का, जहाँ पे उन्होंने थोड़ा एक्सक्लूसिवली डिफाइन किया था. उन्होंने कहा जहाँ पे देयर इज एन इंटेंशन टू मैरी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बट बिकॉज in the particular relationship some feuds started to happen and that relationship got deteriorated with time, and because of that now the man does not want to marry the women. It's a different aspect altogether. It's not an offense, right? When we talk about the false promise to marry and having sexual intercourse in the pretext of that, it basically means where the person had conveyed this to the women and made this false promise to marry from the very beginning, and he had no intention to marry her. It is only to get the sexual favor, to engage into sexual intercourse with the women, that he agreed upon it, and because of that such a person is dealt here, right. And because of that in such situations section 69 deals with them. So by any deceitful means, इस पे भी देखेंगे explanation provided है, the explanation of section 69 which shows what is deceitful means. So it's not limited to false promise to marry but other aspects. So whoever by making false promise to marry or by showing deceitful means without any intention of fulfilling the same, ये बहुत ज़रूरी है. कोई इंटेंशन नहीं थी फुलफिल करने की फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, राइट. हैज सेक्शुअल इंटरकोर्स विद हर, सच सेक्शुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप. तो ये रेप के अंदर तो इंक्लूड नहीं हो पाएगा, बट दिस पर्टिकुलर ऑफेंस is now dealt under section 69, and herein the punishment can be of either description which may extend to 10 years and shall also be liable to fine itself. 10 साल तक की पनिशमेंट यहाँ पे प्रिस्क्राइब करी गई है अब, और साथ में फाइन भी आपको प्रोवाइड इम्पोज किया जा सकता है.
on that person, right? Further the explanation further उसने बताया ना deceitful means क्या क्या है, so it says it shall include, यानी कि limited नहीं है, inclusive definition है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं deceitful means में. It shall include inducement for or false promise of employment or promotion or marrying by suppressing identity. यानी कि इंटेंशन तो थी मैरिज करने की, लेकिन क्या था, आपकी आइडेंटिटी आपने सप्रेस कर ली. जैसे होता है ना, आपने सुना होगा जो एस्पेक्ट लव जिहाद का हो गया, पर्सन है, ही बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी से है, एंड दैट पर्सन हैज नॉट कन्वेड हिज ओरिजिनल आइडेंटिटी टू द वीमेन, बेसिकली वीमेन ऑफ अदर रिलीजन इटसेल्फ, एंड उसने या फिर झूठी अपनी आइडेंटिटी बता दी कि भैया मैं एक हिंदू हूँ, एंड देयरइन ही वांटेड टू मैरी नेवरदलेस, but he has suppressed his original identity, and therein he engaged into sexual intercourse with her on the pretext of marrying her, right? That is also coming under the aspect of deceitful means. उसके अलावा क्या हो सकता है, कोई भी false promise of employment या promotion का कोई false promise कर दिया आपने, so all that is now provided under section 69. Other than this, there might be other activities which from time to time by the various judgment of Supreme Court and the High Courts, which will come into light, which are also included in the aspect of deceitful means. क्योंकि ये एक ओपन मीनिंग इसका यहाँ पे प्रोवाइडेड है, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, एन इंक्लूसिव डेफिनेशन इज प्रोवाइडेड ओनली. यस, लास्टली जो सेक्शन 377 था रिगार्डिंग अननेचुरल ऑफेंसेस, which has now been omitted under the BNS itself. Then section 497 of IPC जो डील करता था एडल्ट्री ऑफेंस के रिलेटेड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, बिकॉज इट वाज वायलेटिंग आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा था. women's were being treated like a chattel, like a you can say property of the man. That is why it is now omitted. It is now totally omitted from BNS. वहाँ पे उसको कोई प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं है किसी भी प्रोविजन में. So this was with respect to offences against women itself. So now we have covered specifically our entire newly enacted penal code, that is our भारतीय न्याय संहिता BNS. और यहाँ पे अगर हम IPC की बात करें, that provision we have covered already. So यहाँ पे क्या होता है, जो नए changes हैं आपके, वो सारे अब incorporate आपके cover हो चुके हैं. So these are the basic changes. हाँ, structural changes ज़रूर हैं, आपको section numbers वगैरह ज़रूर याद करने पड़ेंगे अब. Now coming to the aspect of Prevention of Corruption Act, there is no specific change here. This particular chapter provides for introduction, definitions, offense against and penalties, investigation, previous sanction जो होता है, miscellaneous provision हो गए, और जो आपके previous year questions हैं. Chapter 12 के अंदर भी आपका कोई basic changes नहीं है. It is basically the prevention of Protection of Civil Rights Act as well as the subsequent legislative development, that is the SC/ST Act, Prevention of Atrocities Act, that is dealt here. Now coming to the last part of our topic, last topic of the particular book as well as the course. So it is the offense of defamation and plea bargaining. तो अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमें थोड़े से changes notice होते हैं. पहले with respect to defamation अगर हम बात करें, the offense of defamation has been widened. जो उसकी ambit था वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, ब्रॉड कर दिया गया. अगर हम कंपेयर करें उसको सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी से, तो अब बीएनएस के अंदर सेक्शन 356 डील्स विद द ऑफेंस ऑफ डेफेमेशन व्हिच इज वाइडन्ड इन इट्स डेफिनेशन. सो इट प्रोवाइड्स दैट अंडर दिस सेक्शन 356 ऑफ बीएनएस द वर्ड्स इन एनी मैनर आर इंसर्टेड आफ्टर मेक्स और पब्लिशेस. तो पहले तो था सिर्फ मेक्स और पब्लिशेस, राइट? he is making or publishing any sort of words, any sort of whether verbal, whether oral, in any other manner, चाहे slander हो या फिर वो libel हो, कैसे भी करके किसी पर्सन की जो एक इमेज है सोसाइटी के अंदर, एक रेपुटेशन है सोसाइटी के अंदर, उसको डिमीन कर रहा, उसको डिक्रीज कर रहा, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा हो, राइट? यहाँ पे एक वर्ड उसके बाद में ऐड कर दिए गए हैं, इन एनी मैनर, जो पहले नहीं हुआ करते थे. इट मीन्स किसी भी तरीके से कर सकता है वो. इट विल ऑल्सो इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल बाय यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राइट? आपने फ़ोन पे था, फ़ोन पे उस ट्विटर वगैरह या एक्स के ऊपर गए, आपने वहाँ पे ट्वीट कर दिया, राइट? इन एनी मैनर दैट इज प्रोवाइडेड हियर एंड नाउ. तो इलेक्ट्रॉनिक मैनर में भी अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए भी अगर आपने पब्लिश किया है, दैट इज नाउ इंक्लूडेड अंडर द ऑफेंस ऑफ डेफेमेशन अंडर जो आपका 356 ऑफ बीएनएस के अंदर है.
It shows that the publishing of any defamatory material can be distributed to the world through any medium of communication, including social media, platforms, etc. जब हम बात कर, बस यही एक डिफरेंशिएशन है जो आपको डेफेमेशन के अंदर मिलेगा. बाकी जो एंटायर प्रोविजन अलॉन्ग विद इट्स 10 एक्सेप्शंस, इट इज स्टिल द सेम, बिल्कुल सेम को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है. बस हाँ थोड़ा सा ये चेंज है कि इन एनी मैनर, थोड़ा ये जो उसका एम्बिट था डेफेमेशन का उसको थोड़ा ब्रॉडर कर दिया गया. पहले आईटी एक्ट के अंदर डील होता था वो, राइट, कुछ एस्पेक्ट्स. अब यहाँ पे सेपरेटली डील करा गया है बीएनएस में डेफेमेशन के ऑफेंस के अंदर ही. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्ली बार्गेनिंग, प्ली बार्गेनिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस हुआ था आपके सीआरपीसी के अंदर, चैप्टर 21A, प्रिस्क्राइबिंग फ्रॉम सेक्शन 265A टू 265L इन द सीआरपीसी. उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया था, बाद में इनकॉर्पोरेट किया था आपके जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके अंदर. सो नाउ व्हेन वी लुक एट द BNSS, सो इट इज नाउ फाउंड अंडर चैप्टर 23 ऑफ BNSS. व्हाट इज BNSS? पहले ही देख चुके हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, राइट, विच प्रोवाइड्स फॉर, विच प्रिस्क्राइब्स फॉर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. उससे रिलेटेड यहाँ पे आपका सेक्शन 289 से लेके 300 तक का प्रिस्क्राइब है. अब अलग से, क्योंकि पहले तो भाई 265 के अंदर ही करना पड़ा, नया इनकॉर्पोरेट कर रहे थे, राइट, तो अब एक सेपरेट चैप्टर उसको दे दिया गया है. सो अंडर सेक्शन 289 क्लॉज 1 BNS, द वर्ड्स अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years हैज बीन रिप्लेस्ड विद अ चाइल्ड, which shows that the scope of plea bargaining, किस को plea bargaining का जो ये प्रोविजन है उसकी जो एक्सरसाइज करना है, उसका जो बेनिफिट है वो गेन करना है, वो किस को इंक्रीज हो सकता है. द स्कोप ऑफ प्ली बार्गेनिंग अंडर द BNSS हैज बीन नैरोड डाउन, उसको थोड़ा डिक्रीज कर दिया है. पहले वहां पे था कि अगर आपने कोई ऑफेंस किया अगेंस्ट अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years, वहां पे आप प्ली बार्गेनिंग नहीं ले सकते थे. अब यहाँ पे बोल दिया गया भैया अगर किसी चाइल्ड के अगेंस्ट में कोई भी ऑफेंस हुआ है, अब चाहे वो चाइल्ड 14 years तक का हो या फिर 18 year का हो, राइट, 18 years तक का हो, तो जो ये 4 साल थे अब इंक्रीज कर दिए गए हैं. सो इफ अ पर्सन इज चार्ज विद एनी ऑफेंस अगेंस्ट अ चाइल्ड, पहले होता था अगेंस्ट अ चाइल्ड विद इन द एज ऑफ 14 years, वो अलग था. अब थोड़ा नैरो कर दिया प्ली बार्गेनिंग का जो एक्सरसाइज है, और यहाँ पे प्रिस्क्राइब है. एंड नाउ एनी ऑफेंडर चार्ज विद एन ऑफेंस अगेंस्ट अ चाइल्ड इवन इन बिटवीन द एज ऑफ 14 to 18 years cannot get the benefit of plea bargaining itself. तो पहली चीज तो ये थोड़ा जो स्कोप है वो नैरो डाउन किया गया है. देन अगर हम देखते हैं आपका सेक्शन 265B1 CRPC, वहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं थी एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग करने की, राइट. ये एक लैक्यूना भी था उसमें जो बार बार रिपीटेडली कोर्ट्स ने भी नोटिस किया, लीगल इल्यूमिनरीज ने भी नोटिस किया कि भैया वहां पे आपको टाइम लिमिट तो प्रिस्क्राइब करनी चाहिए. सो वी हैव बीन हर्ड नाउ एंड अंडर सेक्शन 290 क्लॉज 1 ऑफ BNSS अ टाइम लिमिट ऑफ 30 days, 30 दिन की टाइम लिमिट अब प्रिस्क्राइब कर दी गई है फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस इन द कोर्ट. जैसी जिस समय पे कोर्ट के अंदर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस शुरू हो जाएगा, 30 दिन की आपके पास टाइम लिमिट दे दी गई है, आप अप्लाई कर सकते हैं प्ली बार्गेनिंग के बेनिफिट के लिए. Further, there was no limit on the time the court may allow for the public prosecutor or complainant and the accused for reaching a mutually satisfactory disposition under section 265B4 of the CRPC. अब वहाँ पे जब मान लो कोई पर्सन है उसने प्ली बार्गेनिंग के लिए अप्लाई करा है, अब वहाँ पे कोई म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के बीच में आ सकता है आपके कंप्लेनेंट के और जो आपका एक्यूज है उसके बीच में, प्रोसिक्यूटर के या फिर एक्यूज के बीच में. वहां पे कोई भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं थी. अब दे दिया गया कि भैया द कोर्ट शैल अलाउ टाइम नॉट एक्सीडिंग 60 days, कि सिर्फ 60 दिन का समय उनको दिया जाएगा कि आप 60 दिन के अंदर क्या कर लें, 60 दिन के अंदर आप जाके कोई भी अगर म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन है उसके अगर आ सकते हैं आ जाइए. फॉर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड द एक्यूज्ड टू वर्क आउट अ म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन इटसेल्फ. द प्रोविजन अंडर BNSS are much more lenient towards first time offenders as well who chose to plead guilty and wants to benefit the provisions of plea bargaining. So for this it provides that 1/4 of the minimum punishment may be prescribed on the first time offenders who has not been convicted of any offense in the past itself. तो जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, पहली बार जिन्होंने कोई पर्टिकुलर ऑफेंस के अंदर उनका एक्यूजिशन आई है, कन्विक्शन आई है, तो वहां पे उनको कितनी पनिशमेंट मिल सकती है, 1/4 ऑफ द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट फॉर दैट ऑफेंस, सिर्फ उतनी. तो उनके लिए थोड़ा अच्छा है, बेटर है. आई बिलीव दिस अ गुड स्टेप एज वेल.
स्पेसिफिकली विद रिगार्ड्स टू प्ली बार्गेनिंग थोड़ा इसका स्कोप भी इस तरीके से थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, अब बेनिफिट मिल सकता है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को, कम से कम पनिशमेंट मिलेगी, तो थोड़ा उनके भी थोड़ा मोटिवेशन रहेगा कि भैया ऐसे ऑफेंसेस में ना पड़े आके अब, राइट. सो दैट एस्पेक्ट हैज बीन चेंज अंडर BNSS. So with this I would like to conclude this particular session. We have completed the aspects of law of crimes, we have completed the aspect of BNS. जो मेजर चेंजेस हैं, मेजर क्या सारे चेंजेस हमने कर लिए हैं, जो आपके चेंजेस आए हैं इन द रेस्पेक्टिव पीनल कोड ऑफ द कंट्री नाउ, जो 1 जुलाई से आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा. वहाँ पे आपका जो इंडियन पीनल कोड था उसको रिप्लेस कर लेगा आपका भारतीय न्याय संहिता इटसेल्फ. सो ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट we are bringing a particular book which is written by none other than Jasbir Singh Bajaj sir and Sunita Suman ma'am, and I am also a co-author. So हम तीनों ने ये बुक आपके लिए क्रिएट करी है जिसमें आपको जो जितने भी नए मेजर चेंजेस हैं इन डेप्थ आपको पूरा कंप्लीट पूरा का पूरा प्रोविजन पढ़ने को मिलेगा, एक कंपैरेटिव एनालिसिस मिलेगा, ताकि आपको थोड़ा ना जो इंडियन पीनल कोड था उसके बारे में भी जानकारी मिल सके, और इंडियन पीनल कोड का कैसे एक ट्रांजिशन हुआ है अब विद रिस्पेक्ट टू वेरियस ऑफेंसेस which are categorized in the BNS as well, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा. So with this I am concluding my session, and this book will be very very beneficial for you. So do purchase it. It is available on Amazon, and you can purchase it on in our office as well.